آپ کو لیے چلتے ہیں پشاور، جہاں پر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اب مرجر اس میں یہ نہیں کہ یہ آسانی سے ہو جائے گا، کیونکہ ان کے اپنے قوانین ہیں، ان کے اپنے طور رواج سے وہ اتنی دیر فاٹا کے سسٹم چل رہا تھا، تو اس پہ تھوڑا مسئلہ بھی آئے گا، اس میں ہوم ورک بھی کرنا پڑے گا، اس میں دیکھنا بھی پڑے گا کہ ان کو ایک دم ایک نیا سسٹم آپ لے کے آئیں گے۔ وہ جس طرح دی اور سوات جب پاکستان کا حصہ 1974 میں بنے تھے تو وہاں بڑے مسئلے مسائل آ گئے تھے، اس لیے اس سے سیکھ کے یہ ایک گریجول چینج آنا پڑے گا وہاں، یعنی ان کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے، قبائلی علاقے کے لوگ بیٹھ کے، لیکن اس کے علاوہ ہے کوئی راستہ نہیں، اور جانا یہی پڑے گا، مرجر ہی کرنا پڑے گا آخر میں پختونخوا اور فاٹا کا۔ ایک میرے آپ سب سے ریکویسٹ ہے، چونکہ ہاسپٹل ہے اور اتنا ہنگامہ پڑ جاتا ہے کہ اور مریض بھی یہاں پر ہیں، یہ تو نہیں کہ حادثہ ہو گیا اور باقی مریضوں کا خیال ہی نہ رکھا جائے، تو میری ریکویسٹ ہے آپ سے بھی، جتنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں کہ وہ آئیں، بے شک پریس کانفرنس کریں، لیکن اندر جانے کے وقت یہ جو ہنگامہ پڑ جاتا ہے اور مریض کے کمرے میں جانا یہ بھی کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ تو میں ہاسپٹل مینجمنٹ کی بھی ریکویسٹ ہے سب کو کہ یہ ہم سے سارا ہاسپٹل کا سسٹم خراب ہو رہا ہے، اتنا رش ہو رہا ہے، تو آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ باہر ایک سیف سی جگہ پر آپ کیمرہ رکھیں اور اندر کوئی نہ آئے، اگر ایک آدمی یا کوئی لیڈر آتا ہے، ایک آدمی آئے، تو آپ اگر سارے کمرے لے کے اندر آتے ہیں تو سارا جو ہسپتال کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اور ڈاکٹر جو بریفنگ چاہیے ہوگی آپ کو، ہر گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد یہ بریفنگ کریں گے، تو ایک سسٹم بننا چاہیے، ادروائز یہ میں خود ہم آتے ہیں عجیب سا ہنگامہ پڑ جاتا ہے، پلیز میں ریکویسٹ کرتا ہوں۔ خان صاحب، جو فاٹا کی صورتحال ہے وہاں پر زیادہ تر جو ایجنسیاں ہیں وہاں شورش ہے، وہاں پر فورسز ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فورسز کی موجودگی میں وہاں معمولات زندگی بحال ہو سکتی ہے، اور آیا ترقیاتی عمل اس طرح ہو سکتا ہے، یا جو آئی ڈی پیز یا یہاں پر پشاور میں ہے، اسلام آباد میں ہے، کراچی میں، وہ واپس جا سکیں؟ اصل میں ہم 1 سال لیٹ ہو گئے، جیسے ہی ضرب عضب ختم ہوا تھا تب سے یہ جو فاٹا اور پختونخوا کے مرجر کے اوپر تب سے کام شروع ہو جانا چاہیے تھا، اور تب سے پوری پلاننگ کرنی تھی پاکستانی فوج جو کہ فاٹا میں ہے اس کے ساتھ، قبائلی علاقے کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے، اور پختونخوا جو کہ میجر سٹیک ہولڈر ہے اس کے اندر، یہ بیٹھ کے تو ابھی سے ایک پلاننگ کرنی چاہیے تھی کہ ہم نے اس کی ریہیبلیٹیشن کیسے کرنی ہے۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر آج اگر آپ کہیں گے لوگوں کو واپس بھیجیں آئی ڈی پیز کو، تو ان کے پاس جانے کے لیے کیا جگہ ہیں؟ ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، دکانیں تباہ ہو گئی ہیں، کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، بے روزگاری ہے وہاں، تو کس چیز پہ واپس جائیں؟ لہٰذا یہ اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کو، پروونشل گورنمنٹ اور فاٹا کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جو فنڈز ہیں یہ ہمیں فنڈز خرچ کرنے پڑیں گے فاٹا میں، اور فنڈز جو ہم خرچ کریں گے وہ سسٹم ایک ہی ہے کہ وہاں ان کا لوکل گورنمنٹ سسٹم کے ذریعے، ان کی جو لوکل گورنمنٹ کی باڈیز ہیں ان کے ذریعے پیسہ خرچ کریں۔ اگر اور کوئی طریقہ کیا یہ پیسہ وہاں پہنچے گا نہیں۔ ہاں صاحب، یہ 4 لاکھ روپے کچھ آئی ڈی پیز کو ملا تھا واپسی کے لیے، اور کچھ کو وہ بھی نہیں ملا، 4 لاکھ روپے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میرا تعلق اصل میں ابھی تو پختونخوا کو تو نہیں پتا اس چیز کا، کیونکہ وہ تو ڈیل کر رہے ہیں فاٹا کے ساتھ۔ جی ناظرین، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور وزیر اعلیٰ کے پی پرویز خٹک میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا فاٹا کو کے پی میں جلد از جلد ضم کرنا ہوگا۔ آئی ٹی پیز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کی بحالی پر بھی کام کرنا ہوگا۔ پشاور دھماکے کے حوالے سے عمران خان نے کہا کہ دھماکے میں ججز کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے۔ فاٹا کی ترقی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ فاٹا کی ترقی میں بہت پہلے کام کرنا چاہیے تھا، مسائل کے مستقل حل کی طرف بڑھنا ہوگا۔ فاٹا کو جلد سے جلد خیبر پختونخوا میں ضم کرنا ہوگا، یہ کہا چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے۔ انہوں نے کہا کہ آئی ڈی پیز کی بحالی اور انفراسٹرکچر میں بہتری کی ضرورت ہے۔
सादिकाबाद के लंडा बाजार में लगने वाली आग से 400 से ज्यादा दुकानें और पथारे जल गए। फायर ब्रिगेड ने 5 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया है। सादिकाबाद के लंडा बाजार में रात गए अचानक आग लग गई, जिसने देखते ही देखते पूरे बाजार को अपनी लपेट में ले लिया। आग की शिद्दत को देखते हुए जिले भर से फायर ब्रिगेड तलब किए गए, जिन्होंने 5 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। आतिशज़दगी से बाजार और तराफ में 4 से ज्यादा दुकानें और पथारे जल गए, जिनसे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। रेस्क्यू जराये के मुताबिक आग से लंडा बाजार के अतराफ में वाक़े सैकड़ों झोंपड़ियां भी जल गईं। आग लगने की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। उधर शेखुपुरा में फैक्ट्री में बॉयलर फटने से आग भड़क उठी। 22 मजदूर झुलसकर जख्मी हो गए, कई की हालत तशवीशनाक है। शेखुपुरा के करीब लाहौर रोड पर कला सत्तार शाह के करीब स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री का बॉयलर जोरदार धमाके से फट गया, जिसके बाद फैक्ट्री में आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। फैक्ट्री में मौजूद 22 मजदूर आग के बायस झुलस गए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू टीमों ने फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयों का आगाज किया, जबकि फायर ब्रिगेड इंतजामिया को भी तलब किया गया, जिन्होंने आग पर काबू पा लिया। जख्मी होने वाले 10 मजदूरों की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें लाहौर के मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दीगर जख्मियों का इलाज DHQ में जारी है। अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे। सरगोदा में बैतुल माल के दफ्तर पर कब्जे के बाद चेयरमैन ने दफ्तर सड़क पर ही लगा लिया है। कब्जे के बाद मामलात अब सड़क पर तय होने लगे हैं। चेयरमैन बैतुल माल के मुताबिक गुज़िश्ता माह जिला इंतजामिया ने बगैर किसी वजह के दफ्तर पर कब्जा कर लिया था और अब दफ्तर मौजूद नहीं है। चेयरमैन ने सड़क पर ही अपना दफ्तर लगा लिया है। अब तमाम मामलात सड़कों पर ही हल होंगे। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज उस्मान शेख से। उस्मान, बताइएगा दफ्तर क्यों हटाया गया, कोई वजह सामने आ सकी है? जी बिल्कुल, ये सरगोदा में जो जिला कौंसिल का दफ्तर है उसके अंदर बैतुल माल का जो दफ्तर बना हुआ था, जिसके ऊपर जो है वाइस चेयरमैन है उसने जो है कब्जा कर लिया है, जिसके में जो नायब तहसीलदार और तहसीलदार ने मिलकर उससे वो कब्जा जो है उधर करवाया है। और चेयरमैन बैतुल माल के मुताबिक जो है इनके जो बार बार ना इन्हें नोटिस दिया गया और ना ही इन्हें कोई भी मुतबादल जो है वो जगह दी जा रही है दफ्तर के लिए। इसके एहतजाजन जो है उन्होंने दफ्तर रोड के ऊपर ही जो इसका साइकिल स्टैंड था बैतुल माल का उधर ही जो उन्होंने दफ्तर लगा दिया और उन्होंने कहा कि सैकड़ों अफराद ऐसे हैं जिनको जो है जो बैतुल माल का जो माल मिलना था वो उससे नहीं मुस्तक हो सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान शेख अपडेट्स के लिए। और नाज़रीन, पंजाब के दीगर शहरों की तरह नए ड्रग एक्ट के खिलाफ बहावलपुर केमिस्ट एसोसिएशन 3 रोज से सरापा एहतजाज है। बहावलपुर में नए ड्रग एक्ट के खिलाफ केमिस्ट एसोसिएशन ने तीसरे रोज भी मेडिकल स्टोर्स बंद रखे। सर्कुलर रोड पर एहतजाजी मुजाहिरा भी किया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर नए ड्रग एक्ट और हुकूमत मुखालिफ नारे दर्ज थे। उनका कहना था कि मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल और एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। उधर जतोई में भी आज तीसरे रोज केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन की कॉल पर ड्रग रूल्स एक्ट के खिलाफ शटडाउन हड़ताल की गई और एहतजाजी रैली निकाली गई। ड्रग एक्ट के खिलाफ जारी एहतजाज और रैली में तहसील भर के तमाम मेडिकल स्टोर्स, होम्यो क्लिनिक के मालिकान ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत जालिमाना ड्रग रूल्स वापस ले, वरना एहतजाज जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि सैकड़ों अफराद को बेरोजगारी से बचाया जाए और नया कानून फौरी तौर पर वापस लिया जाए। उधर हड़ताल के बाइस तमाम मेडिकल स्टोर्स बंद रहे। ड्रग तरमीमी एक्ट के खिलाफ जोहराबाद में आज भी मेडिकल स्टोर्स मालिकान की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का भी ऐलान कर दिया। गुजरांवाला में भी ड्रग एक्ट के तरमीमी बिल के खिलाफ मेडिकल स्टोर्स की हड़ताल तीसरे रोज भी जारी रही। अद्वियात की अदम दस्तयाबी की वजह से मरीज सख्त अजियत का शिकार हैं। पंजाब के दीगर शहरों की तरह गुजरांवाला और इसके गिरदनवा में कायम मेडिकल स्टोर्स तीसरे रोज भी बंद रहे। मेडिकल स्टोरों की हड़ताल की वजह से मरीजों को अद्वियात न मिलने से शदीद मुश्किलात का सामना है। दवासाज कंपनियों और मेडिकल स्टोर्स मालिकान का कहना है कि वो हुकूमत पंजाब के इस काले कानून को नहीं मानते। जब तक पंजाब हुकूमत उनके मुतालिबात तस्लीम नहीं करती,
तब तक हड़ताल जारी रहेगी। दूसरी जानिब परेशान हाल मरीजों और लवाहिकीन का कहना है कि हुकूमत जल्द से जल्द उनके साथ मुज़ाकरात करके मामले को हल करे ताकि उन्हें इस अजियत से छुटकारा मिल सके। ड्रग एक्ट में तरमीम के खिलाफ मुल्तान में तीसरे रोज मेडिकल स्टोर्स मुकम्मल तौर पर बंद रहे। केमिस्ट एसोसिएशन का कहना है कि जब तक हुकूमत नए ड्रग एक्ट को वापस नहीं लेती उनका यह एहतजाज जारी रहेगा। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं एजाज तरीन अपनी रिपोर्ट में। ड्रग रूल्स 1976 में तरमीम के खिलाफ केमिस्ट एसोसिएशन की अपील पर अद्वियात फरोख्त करने वालों ने आज तीसरे दिन भी शटर डाउन हड़ताल की, एहतजाजी रैली निकाली और नारेबाजी की। एहतजाज में मैन्युफैक्चर, रिटेलर, केमिस्ट, होलसेलर और तमाम फार्मेसी मुकम्मल तौर पर बंद रहीं। दीगर ताजर तंजीमें भी केमिस्ट एसोसिएशन से इज़हार यकजहती के लिए हड़ताल में शामिल हो गयी। केमिस्ट एसोसिएशन के ओहदेदारों का कहना है कि ड्रग एक्ट गैर कानूनी है, इस इकदाम से हम अपना कारोबार नहीं कर सकेंगे और लाखों अफराद को बेरोजगारी का सामना भी करना पड़ेगा। अभी तो ये हड़ताल जारी रहेगी जब तक ये लोग हमारे साथ कोई मुशावरत नहीं करते। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है, इसको वापस लिया जाए। बज़ाहिर जो ड्रग एक्ट है ये अवाम के मफाद के लिए उन्होंने बनाया है, लेकिन ये अवाम को कत्ल करने का ड्रग एक्ट है। जितने भी केमिस्ट बरादरी है उसे कत्ल करने के मुतादिफ है, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि ये काम करें। ड्रग एक्ट के खिलाफ एहतजाज अद्वियात फरोख्त करने वालों का आईनी हक है। अद्वियात की अदम दस्तयाबी के बायस होने वाली अमवात का जिम्मेदार कौन है? केमिस्ट एसोसिएशन के रहनुमा इस मामले को मुज़ाकरात के जरिए हल करें तो बेहतर है, ताकि अद्वियात की अदम दस्तयाबी से होने वाले मरीजों की मुश्किलात कम हो सके। तिब का शोबा ऐसी हड़तालों का मुतामिल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें इंसानी जानें बचाना जरूरी है। कैमरामैन मोहम्मद इमरान के साथ एजाज तरीन, वक्त न्यूज़, मुल्तान।